Hello Tigers, welcome to Sales Doc. This is my third video. My first two videos were more of introductory videos wherein I briefed you about me, about my career as a sales professional, and I also told you something about Sales Doc, why I thought of doing it. So from now on, my videos would be focused more on the topics related to sales profession. So I'll be sharing what all topics I'll be taking through in the coming videos. But before I start this, I would just like to speak something about sales. I would like to say something to people who are looking forward to be a sales professional, or people who have already entered this profession. I would just like to say that though every job needs a conviction, you need to be 100% sure before opting for any of your career profession or your studies or whatever you do. You need 100% conviction. It's true with every job you choose, but sales, I would say, needs more of it, because it has nothing which you have in your hands. You have to grab it from the market. You have to be very active on that. So for that, your mindset should be of a salesperson. Yes, I've decided to take it as a profession and I'm going to give 100%. So this is one thing I would suggest to every one of you, whosoever is looking forward or to join this profession or are already working in it, right? To me, I believe sales as a profession, I would say something about that. Sales as a profession is very interesting. It's challenging and it's safe also. Now, why interesting? Because you get to travel a lot. Traveling itself is something which teaches you a lot. You move out of your houses, you travel, you meet different people, you learn a lot while talking to people, while interacting with people, right? So it teaches you to understand people. It teaches you to talk to people. It makes you learn a lot. It's a very interesting job. You come across very interesting instances while traveling. You come across very interesting people while traveling. I'll just share one small episode with you all. It was very early in my career. I was traveling in a bus. So in those days, you didn't have AC buses and all. We used to travel by through the roadways transport. So I was traveling, and just in front of me, 2-3 rows seats ahead, there was a person. He was looking like a farmer, and he was very fond of smoking. Nobody recommends smoking, but he was fond of it. And वो उसने बैठा आगे, उसने एक बीड़ी ली, बीड़ी जलाई, started smoking. Just behind him, there was a person very well dressed in a white, very new looking kurta and dhoti, and he was looking like someone from a very well off family. He was just sitting behind him, so he told him not to smoke. बट वो जो बंदा था उसको आदत थी. काफ़ी लोगों ने बोला, बट वो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं अंदर निकला, धुआं हो रहा है, तो उसने खिड़की खोल ली एंड स्टार्टेड स्मोकिंग बाय लुकिंग आउटसाइड. बट जैसा होना था, हवा आई और उसकी बीड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा जो पीछे सज्जन बैठे थे उनकी धोती पे जाके गिर गया. उनकी धोती में एक छोटा सा छेद हो गया, एक गड्ढा हो गया. एंड दैट गाय वाज फ्यूरियस. वो उस पर बुरी तरह से चिल्लाने लग गया, और वो गरीब आदमी था, उसने बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था. और वो बस एक ही बात रिपीट करता कि मेरी धोती 500 रुपये की है ना, मुझे 500 रुपये दो. वो देख पा रहा था कि वो बंदा इस लायक नहीं होगा शायद कि वो 500 रुपये दे पाता उसको. उसने बहुत सॉरी बोला, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था वो बंदा. एंड ही केप्ट ऑन शाउटिंग. पीपल वर लिसनिंग टू हिम. मेरे बिल्कुल साथ वाली सीट पे एक बंदा बैठा था, बहुत देर से इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहा था. सडनली वो बंदा अपनी जगह से उठा, उसने अपने पर्स में हाथ डाला, एक 500 रुपये का नोट निकाला, उन भाई साहब के पास गया जिनकी धोती में छेद हुआ था, और उसको बोला कि ये आप 500 रुपये पकड़िए, आपकी धोती के. इस गरीब आदमी के पास ये पैसे नहीं है, आप मेरे से लीजिए 500 रुपये.
सेठ जी ने 500 रुपये ले लिए। जैसे ही उसने 500 रुपये दिए, वो उनको बोला अब आप ये धोती खोल के मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैंने इस धोती के लिए आपको पेमेंट कर दिया है, तो ये धोती अब मेरी है। आप ये कह रहे हैं धोती 500 रुपये की है और इस शेयर के बाद आप इसको पहन नहीं पाएंगे, तो आप इस धोती को आप खोल के मुझे दे दीजिए, और ये 500 रुपये मैंने आपको धोती का पेमेंट हो गया। अब जब आपको धोती का पेमेंट हो गया तो धोती आपकी नहीं रही, ये धोती अब मेरी हो गई। सो वो एक ऐसी चीज थी जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कोई नहीं, किसी ने नहीं बोला, लेकिन उस आदमी ने उस सिचुएशन को इतना ब्यूटीफुली हैंडल किया कि उन आदमी को उसको पैसे वापस करने पड़े और वो चुपचाप होकर बैठ गया। तो कभी कभी आप ऐसी सी चीजें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, जो आपको भी फ्यूचर में कभी कभी ऐसे इंस्टेंसेस आपके साथ भी हो सकते हैं, बट यू कैन हैंडल इट अगर आप दिमाग से काम लेते हैं तो। ये मैंने इसलिए शेयर किया आपसे कि ट्रैवलिंग इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यू लर्न अ लॉट। उसके बाद मैंने आपको बोला चैलेंजिंग। व्हाई चैलेंजिंग? चैलेंजिंग बिकॉज आपके डेली के टारगेट्स हैं, आपके मंथली टारगेट्स हैं, आपके वीकली टारगेट्स हैं, आपके ईयरली टारगेट्स हैं, आपको विजन चाहिए 3-3 साल का, बट यू हैव नथिंग इन योर हैंड्स। कोई फाइल नहीं है सच जिसको आके जाके काम, आपको पता है कल मैं जाऊंगा मुझे वो फाइल कंप्लीट करनी है, ऐसा नहीं है। आपको डेली जब मार्केट में निकलते हैं आपके पास कुछ भी नहीं होता, बट यू नीड टू गेट इट, यू नीड टू डू योर टारगेट्स ऑन डेली बेसिस। सो इट्स चैलेंजिंग, यू डोंट नो तो आपका कौन सा डीलर किस मूड में बैठा है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है अभी, बट जैसा भी सिचुएशन है आपको उसमें से कुछ ना कुछ निकालना है, तभी आप अपनी जॉब को जस्टिफाई कर पाएंगे, तभी आप अपने टारगेट्स को मीट कर पाएंगे। तो चैलेंजिंग है। सेफ क्यों है? सेफ इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्स बहुत सेफ जॉब है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि रिस्की है, रिस्की है, कुछ भी रिस्की नहीं है, सेफेस्ट जॉब आई बिलीव। क्योंकि देखिए सेल्स प्रोफेशनल की जरूरत हर कंपनी को हमेशा रहेगी, बिकॉज मैन टू मैन इंटरेक्शन से बेटर कोई तरीका नहीं है सेल को करने का। इसका सिंपल एग्जांपल है, आप जाइए, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, आपको जो टॉप नंबर 1 नंबर 2 कंपनीज होंगी, आप देखेंगे कि उनके पास मैक्सिमम मैन पावर है ना। इवन आप देखेंगे कोरोना के टाइम पे भी सेल्स का जो मैन पावर कट डाउन बहुत कम था। क्यों कम था? बिकॉज जब तक हम जाएंगे नहीं डीलर, जब तक अप्रोच नहीं करेंगे हम डीलर को, बहुत ऑप्शन होते हैं डीलर पर अवेलेबल। सो वो मैन टू मैन इंटरेक्शन के लिए टीम हैज टू बी देयर, सेल्स टीम हैज टू बी देयर। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वर्स्ट सिचुएशन में भी आप सबसे सेफ प्रोफेशन में हैं, राइट। वी बिलीव ऑल दीज 3 थिंग्स। आप सेफ हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। सेल्स को चूज करने से पहले जैसे मैंने बोला कन्विक्शन चाहिए, बट आप बिल्कुल सेफ हैं। ये थी वो 3 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग मुझे लगा सेल्स प्रोफेशन में, मेरा बहुत लंबा एसोसिएशन रहा सेल्स से, तो मुझे ये 3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मैंने आपसे वही शेयर किया, राइट। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी शेयरिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू आवर प्रोफेशन। सो टू स्टार्ट विद, हम लोग सबसे पहले जब तैयारी करते हैं, हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। इंटरव्यू की प्रिपरेशन 2 तरह से हो सकती है। फर्स्ट, पीपल हु आर न्यू, फ्रेशर्स, उनका जो प्रिपरेशन होगा उसके लिए कुछ और चीजें चाहिए। देन फॉर पीपल हु वांट टू स्विच ओवर, जो ऑलरेडी किसी ना किसी प्रोफेशन में हैं, सेल्स प्रोफेशन में हैं, लेकिन वो स्विच ओवर करना चाहते हैं फॉर देयर बेटरमेंट। सो इन दैट केस प्रिपरेशन वुड बी डिफरेंट, राइट। तो आई विल बी शेयरिंग इट विद यू ऑल कि क्या प्रिपरेशन आपको चाहिए। दो आई कैन नॉट अश्योर यू व्हाट क्वेश्चंस आर टू बी थ्रोन एट यू, बट मैं आपको इतना प्रिपरेशन के लिए बता दूंगा कि आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर दोस क्वेश्चंस। उसके बाद में देन आप वंस यू जॉइन द प्रोफेशन, आप ऑफिस में जब जाते हैं तो आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, आपको क्या चीजें देखनी है, आपको क्या चीजें सीखनी है। इंडक्शन प्रोग्राम हर कंपनी का होता है, बट आई विल सजेस्ट यू ऐसी क्या चीजें। इंडक्शन में क्या होता है, कंपनी के बंदे होते हैं आपको, लेकिन वो सिर्फ उस काम के लिए नहीं होते। दे ऑलरेडी हैव देयर, जो मार्केटिंग का बंदा है तो उसका अपना काम है, सेल्स का बंदा है तो उसका अपना काम है, तो वो अपने काम में से टाइम निकाल के ही आपको एड्रेस कर सकता है। मैं आपको ऐसे गाइड करूंगा कि आप अगर किसी की हेल्प ना भी मिले तो भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। वंस यू आर प्रिपेयर्ड देयर, देन यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर मूविंग टू द मार्केट, बिफोर हैंडलिंग योर डीलर्स। यू कैन नॉट गो अनप्रिपेयर्ड। सो वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग विद यू। देन आई विल बी शेयरिंग स्ट्रैटेजीज टू अचीव योर डेली, मंथली, ईयरली टारगेट्स। स्ट्रैटेजीज हैं, आजकल डेली टारगेट्स का चलन है ना, मतलब कंपनी एक्सपेक्ट्स वी डू सेल्स डेली। सो क्या स्ट्रैटेजीज हैं, व्हाट आर द बेटर वेज जिससे आप कंफर्टेबली अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद में एक कस्टमर के लिए आपके सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर की सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब
whenever someone goes and represent a company, dealers की एक expectations होती हैं आपसे. He expects something from you, expects in terms of services. So I'll be telling you what all things you need to take care while handling your dealers. उसके बाद में you all need to have a vision for yourself. Vision दो तरह के, first personal vision and then एक विजन तो कंपनी का हर कंपनी का विजन होता है, लेकिन आप एक विजन बनाइए अपने खुद के लिए. तो विजन आप अपने लिए कैसे सेट करते हैं, बिकॉज वही सक्सेसफुल होगा जो डिफरेंट की चीज को करेगा, जो औरों से बहुत अच्छा होगा, राइट. तो वो मैं आपको बताऊंगा आपके विजन कैसे आप अपने विजन ड्रॉ कर सकते हैं, उसको आप कैसे चेज कर सकते हैं. उसके बाद में ये नीड, आप इस वर्किंग के दौरान जस्ट कीप वर्किंग फॉर योर प्रोग्रेस, आपको भी आगे बढ़ना है, राइट. सो वी लर्न अ लॉट इन दिस प्रोसेस. यू ऑब्जर्व पीपल यू आर रिपोर्टिंग टू and you groom yourself so that one fine day when you get the chance to be a leader or a manager, you are already prepared for that. So I'll be telling you what qualities does a manager needs. फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेरा रहा है हमेशा से, बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल लाइफ. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको सोचते हैं चल रहा है, हम इग्नोर कर देते हैं. दैट शुड नॉट हैपन. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी फैमिली लाइफ और आपके प्रोफेशन कभी भी मिक्स नहीं होना चाहिए. टू मेंटेन दैट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करूंगा, ठीक है. इसके बाद में आई विल बी टेलिंग यू एन ओवरव्यू ऑफ कस्टमर बिहेवियर. हर कस्टमर का अपना काम करने का तरीका है, उसका अपना बिहेवियर होता है. तो मैं अपने इस करियर में थाउजेंड डीलर से मिला हूँ. अपने 34 ईयर्स का लॉन्ग करियर में बहुत लोगों से मिला हूँ. सो मैं आपको कुछ केस स्टडीज के साथ में शेयर करूंगा कि किस सिचुएशन में किस डीलर का बिहेवियर कैसा होगा और आपको उसको कैसे हैंडल करना है. उसके बाद में आई जस्ट डोंट वांट टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दिस सेल्स टीम ओनली. आई विल बी ओपन फॉर डीलर्स ऑल्सो. इफ अ कस्टमर, अ शॉपकीपर वांट्स टू टॉक टू मी, as I told you just that in my previous video also, the experience is big. I've seen people growing like hell. I've seen people not doing well. So those people who have done well, उन्होंने क्या अच्छा किया है, I've been there, I'm observing them. So मैं शेयर करके I can guide you through. मैं आपको गाइड कर सकता हूँ उन डीलर्स को भी जो चाहेंगे कि उनकी बिजनेस कैसे बढ़ सकता है. I can help you out in that also. उसके बाद में I would also like to ask corporates, if at all HR feels they want their team to interact with me, though they have their own team, but at times what happens is when we talk to our bosses, at times you are not in a position to share each and everything. We hesitate sharing each and everything. You can share it with me, you can ask your team to share it with me. Every discussion of ours would be 100% confidential. It would be between you and me. No one else is going to know what all you have shared with me. Nobody is going to know. कभी कभी हेजिटेट कर जाते हैं हम, नहीं कुछ चीज़ें ऐसी शेयर कर पाते हैं अपने बॉसेस से जो हम करना चाहते हैं. बट यू कैन डू इट फ्रीली विद मी एंड आई विल आस्क कॉर्पोरेट्स टू आस्क देयर टीम इफ इट ऑल दे नीड, आई कैन हेल्प देम आउट टू गेट अ बेटर रिजल्ट आउट ऑफ देम. ठीक है. इन सब चीज़ों के बारे में आई विल बी शेयरिंग इन डिटेल्स इन माई कमिंग वीडियोज. By the time we do it, if you have any query, please comment on my YouTube channel or you can direct message me on my Instagram page. I'll be replying to you. It was nice talking to you. Be with me. I'll be sharing regular videos now. Thanks a lot.